Good morning, everyone. This is the sum we will do now. Mrs. HP Limited has a head office at Mumbai and branch at Delhi. So head office is in Mumbai and branch is in Delhi. The transactions relating to the branch for the year ended 31st December 2018 were as follows. 31/12/2017, these are, if the year end is 31st December 2018, ये 31st December 2017 मतलब ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंसेस है ऑफ स्टॉक, डेटर and petty cash. Last year ka closing balance will become the current year opening balance of assets. Then we have amount sent to branch for expenses. Branch head office ने branch को खर्चे के लिए पैसा send किया. Send the money to branch for expenses, salary 7,200, rent 2,400, expenses 1,200. Then we have गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच को ये गुड्स मिला, डेबिट द रिसीवर 1,52,000. अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच, ब्रांच हैज paid this money back to the head office, so money will go, ये the credit the giver. Who is the giver here? Branch. तो क्रेडिट कैश सेल्स का 12,500 आउट ऑफ रिसीट फ्रॉम डेटर कितना पैसा रिटर्न किया? 1,59,000. So the branch, what will the branch do in the year end? It will remit the amount, balance amount to the head office. So total 12,500 plus 1,59,000 cash sales and receipt from debtor was remitted back to the head office. Branch informed that sales during the year was 1,75,500 including cash sales. टोटल सेल्स का वैल्यू दिया है, बट हमारे लिए टोटल सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रांच ने कितना पैसा हेड ऑफिस को रिटर्न किया. दिस सेल्स विल नॉट कम इन द ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट में आएगा हाउ मच अमाउंट वाज पेड बैक बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को कितना पैसा रिटर्न किया. Then we have closing balances of the current year, stock at branch, debtor and cash. Branch statement shows that the branch had paid rupees 3,100 from cash sales for sundry expenses in addition to the amount received from head office. तो head office से पैसा मिला है expenses के लिए 7,200, एक्सपेंसेस के लिए इट वाज 1,200, बट उसके ऊपर 3,100 एडिशनल ब्रांच ने खर्चा किया है, बट वो हम नहीं लिखेंगे बिकॉज हमने वो सब पैसा एडजस्ट करके ही इतना पैसा 12,500 एंड 1,59,000 दैट इज 1 लाख दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1,71,500 हमने रेमिट किया हेड ऑफिस को. उसमें हमने ये जो पैसा हमारा खर्चा हो गया दैट ऑल्सो मस्ट बी एडजस्टेड. So this will not come anywhere, and in the branch account this 175,500 also will not come anywhere. So let us start with the what have we supposed to prepare? Branch account. So in the books of head office, in the books of what is the head office? Name of the head office HP Limited. Name of the head office is HB Limited. HB Limited. Yes. Branch is in Delhi. So Delhi branch account. Branch account. So here let us insert the columns. Particulars,
rupees, particulars, rupees. So now सबसे पहले we will start with to balance what down. This is opening assets. This is opening assets. So क्या opening assets दिया है क्वेश्चन में? Let us see. We have branch, stock at branch, debtor and petty cash. So we'll write stock, debtors and petty cash. So what are the amounts? Let us see. 38,000, 16,800, 450. So I will write 38,000, 16,800, one line below, and 450. Okay. So after this, what is given? Have they given the opening balance of liability? Buy balance brought down. That is not given. It is nil. नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. Opening liabilities not given. Now what is given? उसके बाद what is there? Amount sent to branch for expenses. So head office ने branch को amount send किया for expenses. तो amount send किया तो what the branch has received? It has received cash. For what purpose? For the purpose of expenses. तो हम क्या कर सकते हैं? पूरा आर करके लिख सकते हैं या वन बाय वन वी कैन शो सैलरी, रेंट एंड एक्सपेंसेस. सो आर करके भी लिख सकते हैं या तो वन बाय वन वी कैन राइट सैलरी, रेंट एंड एक्सपेंसेस. What are the amount? 7,200, 2,400, 1,200. So I will write here. हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, उसका टोटल भी लिख सकते हैं. anyway 7,200, 2,400, 1,200. इसके बाद वी हैव गुड्स सेंड टू ब्रांच. ब्रांच को गुड्स सेंड किया तो ब्रांच इज द रिसीवर. टू गुड्स sent to branch. How much it is? 1,52,000 to goods sent to branch. Then we have amount remitted by branch. तो ये ब्रांच ने पैसा हेड ऑफिस को वापस किया तो यहाँ पे आएगा बाई कैश वैन बिकॉज मनी इज गोइंग आउट. हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं remittance. Remittance by branch. ये दो चीज़ों का है, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर या रिसीट फ्रॉम डेटर्स लिखेंगे तो भी चलेगा. हाउ मच इट इज? 12,500 and 1,59,000. So we'll write here 12,500, 1,59,000. इसके बाद हमें ये तो हमें नहीं लिखना है कि इधर टोटल सेल्स कितना था. सी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टोटल सेल, वी आर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट दैट द ब्रांच रीपेज टू द हेड ऑफिस. सो वो तो हमें मिल गया कैश सेल से 12,500 एंड डेटर से जो मिला है उसमें से 1,59,000. सो नाउ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट. सो वो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग विल कम इन द क्रेडिट साइड. असेट्स का क्या क्या है? लेट अस सी. Stock, debtor and cash. So I will write stock,
debtors and cash. Now let us see what amount is there. 45 to 50, 17,800. 45 to 50, 17,800. 45 to 50, 17,800 and cash is 350. तो ये भी हो गया. ये जो ब्रांच ने एक्सपेंसेस के लिए एडिशनल पे किया फ्रॉम द कैश सेल्स, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एनीवेयर. वो माइनस करके ही 12,500 हेड ऑफिस को रिटर्न किया. अगर ये 3,100 नहीं पे करते ब्रांच, 1,200 में काम हो जाता, सफिशिएंट हो जाता. सो यहाँ पे 3,100 एडिशनल हम हेड ऑफिस को सेंड कर सकते थे. नाउ वी हैव टू बैलेंस द हेड ऑफिस अकाउंट. सी विच साइड इज हेवियर. I can see that the credit is heavier. 2,34,900. 2,34,900. 2,34,900. जो बैलेंसिंग फिगर है उसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. This is the balancing figure. See what is the amount we are getting as balance. Minus करो 38,000, 16,800, 450, 7,200, 2,400, 1,200 and 1,52,000. हमें मिलेगा 16,850. With this this sum is done. With this sum is done. So the following particulars, now let us come to the next sum. The following particulars relate to Rajkot branch of Taj Traders with head office at Raipur. The head office is in Raipur. Name of the business is Taj Traders and the branch is Rajkot branch. So for the year 2018, हमें सबसे पहले 1/1/2018 that is the opening balances दिया है. Stock, debtors, petty cash, furniture, outstanding expense. Outstanding expense is a liability. So ये outstanding expense opening balance of liability है. Then during the year, goods sent to branch 1,24,000 branch will receive this amount, of which goods returned by branch was worth 2,000. 1,24,000 branch ने send किया, branch head office ने send किया branch को. 1,24,000 हेड ऑफिस ने सेंड किया ब्रांच को, तो ब्रांच ने रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर. एंड उसमें से ब्रांच को 2,000 अप टू द मार्क कुछ डिफेक्टिव लगा रहेगा तो ब्रांच ने रिटर्न किया हेड ऑफिस को. सो दिस विल गो आउट. ब्रांच इज द गिवर. रिटर्न्स विल कम इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट. Then total sales was rupees 1,80,000. टोटल सेल्स है 1,80,000, जिसमें से 75% वॉज ऑन कैश बेसिस. तो 75,000 क्या है हमारे लिए? कैश है. कैश में सेल किया है. 75% हमारे लिए कैश में सेल किया है. तो वो हम लोग क्या करेंगे? हेड ऑफिस को रेमिट करेंगे, पे करेंगे. सो 1,80,000 का 75% निकालो. हाउ मच यू आर गेटिंग? 1,80,000 का 75% इट इज 1,35,000 कैश में सेल किया. गुड्स वर्थ ₹2,000 were returned by कस्टमर. कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किया. तो कस्टमर जब ब्रांच को रिटर्न करता है, कस्टमर जब ब्रांच को रिटर्न करता है तो व्हाट वी डू?
that will ब्रांच को वो गुड्स मिला, तो कस्टमर ब्रांच को सेल्स रिटर्न करता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट वी डू नॉट रिकॉर्ड इन द ब्रांच अकाउंट। हम ब्रांच अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जब ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करता है, वो दिस कस्टमर ने रिटर्न किया ब्रांच को, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड हियर इन द ब्रांच अकाउंट। हमने ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किया, क्या हमने उसमें ये चीज बोला था आएगा ब्रांच अकाउंट में, अगर ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करता है तो ब्रांच अकाउंट में आता है, ब्रांच बिकम्स अ गिवर। बट कोई कस्टमर ब्रांच को गुड्स रिटर्न करता है तो दैट वी विल नॉट record anywhere in the branch account, that will come in the debtor account। हमारा जब हमें डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना रहेगा तो उसमें ये आ जाएगा गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न करके हमारा डेटर कम हो जाएगा, तो डेटर अकाउंट में आएगा बट ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। Then customer paid rupees 36,000 to branch. This is amount received from debtor, collection from debtor, collection from customers। customers ने credit sale का कितना पैसा ब्रांच को रिटर्न किया, 36,000। and one debtor directly returned 2,000 to head office, so rupees 2,000 to head office directly। तो कस्टमर ने 36,000 ब्रांच को दिया और 2,000 टू हेड ऑफिस डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न करते तो दैट ऑल्सो भी रिकॉर्ड इन द ब्रांच अकाउंट कि एक कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसा रिटर्न किया, तो दैट विल आल्सो कम इन द क्रेडिट साइड। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट में भी बताया था, अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली रिटर्न करता है हेड ऑफिस को तो दैट आल्सो वी विल हैव टू रिकॉर्ड इन द branch account। and were allowed a discount of rupees 1,000, discount ये भी debtor account में आता है, it will not come in the branch account। तो यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, जो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा उसको हाईलाइट करते हैं, तो ये जो है दिस विल नॉट कम। फिर जो डिस्काउंट अलाउ किया दिस विल ऑल्सो नॉट कम in the branch account। branch does not retain any cash from its receipt, मतलब ब्रांच को जितना भी पैसा मिलता है सेल से, डेटर कैश सेल से, डेटर से, कुछ भी पैसा ब्रांच अपने पास रिटेन नहीं करता, एवरीथिंग इज रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। मतलब ब्रांच को जितना भी पैसा मिलता है एवरीथिंग इज रेमिटेड टू द हेड ऑफिस, पेड टू द हेड ऑफिस। ब्रांच डस नॉट रिटेन एनी कैश फ्रॉम इट्स रिसीट, ब्रांच अपने पास कोई भी पैसा बचा के नहीं रखता है, जितना भी उसको इनकम होता है all of them are sent to the paid back to the head office। amount remitted to branch for expenses was rupees 8,000। तो ब्रांच को खर्चे के लिए भी पैसा हेड ऑफिस से आता है, तो ब्रांच को कितना पैसा मिला हेड ऑफिस से, 8,000। उससे ब्रांच ने क्या किया, रेंट पे किया 2,400, सैलरी पे किया 3,600, पेटी एक्सपेंसेस पे किया 1,200 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया फॉर द ईयर रुपीज 800। So add करो 2,400, 3,600 plus 1,200 plus 800, हमें मिलेगा 8,000 जो ब्रांच को मिला है फ्रॉम द हेड ऑफिस फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस। द अमाउंट पेड बाय द head office to the branch for expenses 8,000। and ये expenses को कैसे ब्रांच ने यूज किया, 2,400 रेंट के लिए, सैलरी के लिए 3,600, पेटी एक्सपेंसेस के लिए 1,200, इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली के लिए 800। व्हेन वी ऐड ऑल द फोर ऑफ दिस वी गेट 8,000। 2,400 plus 3,600 is 6,000।
देन 1200 इज 7200 प्लस 800 इज 8000, मतलब पूरा 8000 जो ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए मिला हेड ऑफिस से वो पूरा ऐसे खर्च हुआ। फिर डिप्रीसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे 10%, ओपनिंग बैलेंस है 3000, क्लोजिंग बैलेंस में डिप्रीसिएशन माइनस करके लिखना है। उसके बाद गुड्स वर्थ रुपीज 1600 डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंटल फायर, तो 1600 का गुड्स लॉस्ट हुआ फायर में। एंड हेड ऑफिस रिसीव्ड रुपीज 1200 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज क्लेम। हेड ऑफिस को कितना पैसा मिला है इंश्योरेंस कंपनी से? 1200। ये डायरेक्टली हेड ऑफिस को मिला है, तो डायरेक्टली डेटर से भी कुछ पैसा हेड ऑफिस को मिला है, तो वो हम लोग कैश रिसीव में दिखा देंगे। On 31st December 2018, stock was valued rupees 8000, स्टॉक का वैल्यू है 8000 एंड डेटर है 8000, कैश ऑन हैंड है 900, ऑल एक्सपेंसेस फॉर ईयर वेर पेड एक्सेप्ट सैलरी 250, तो सब एक्सपेंसेस पे किया, बट सैलरी अभी भी पे करना बाकी है 250, मतलब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इट इज अ लाइबिलिटी। सो लेट अस प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का नाम है ताज ट्रेडर्स। सो वी विल प्रिपेयर विच बैंक अकाउंट, बैंक किधर है? राजकोट ब्रांच अकाउंट, राजकोट branch account. Let us prepare the columns. So let us prepare the columns and we will name them particulars, rupees, particulars, rupees. So here what we will do, सबसे पहले to balance bought down, यहाँ पे हम सब असेट्स लिखते हैं, ओपनिंग असेट्स। तो हमारे पास कौन सा ओपनिंग असेट्स है? हमारे पास स्टॉक है, लेट अस जस्ट मार्क बिकॉज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना। सो सब ओपनिंग असेट्स को लिख लेंगे हम। सो सब लिख लिया असेट्स, फिर उसका अमाउंट भी हमें चाहिए, सो वो भी कॉपी पेस्ट कर लेते। दिस इज द बेनिफिट वी गेट व्हेन वी आर डूइंग इन द कंप्यूटर। सो आई विल राइट ऑल द वैल्यू ऑफ द असेट्स, फिर सब असेट्स लिख लिया एक के नीचे एक, फिर उसका अमाउंट भी लिख लिया। अभी लाइबिलिटी बॉट डाउन, बाय लाइबिलिटी बॉट डाउन, लाइबिलिटीज की क्या है? लाइबिलिटीज में हमारे पास एक ही लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 150। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 150। इसके बाद हमारे पास क्या है? ड्यूरिंग द ईयर 2018 गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,24,000। तो यहाँ पे तो ये गुड्स ब्रांच में सेंड किया तो ब्रांच को गुड्स मिलेगा, सेंड टू ब्रांच 1,24,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,24,000। और ब्रांच ने 2,000 का गुड्स रिटर्न किया, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट साइड में बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख सकती है, या बाई ब्रांच जैसे लिखना है लिखो, बट द साइड इज इंपॉर्टेंट, रिटर्न शुड कम इन द क्रेडिट साइड बिकॉज ये बाहर जा रहे, गिवर है यहाँ पे ब्रांच, तो ये है रिटर्न्स। फिर इसके बाद व्हाट वी हैव, इसके बाद टोटल सेल्स 1,80,000 का 75% वॉज कैश सेल्स। तो बाई कैश बैंक, यहाँ लिखेंगे बाई कैश बैंक, कैश बैंक, और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में इट इज
रेमिटेंसेस कितना हेड ऑफिस को वापस किया, तो यहाँ पे कैश सेल्स का कितना वापस किया, 1,80,000 का 1,80,000 का 75% इस कैश सेल्स, तो वो होता है 1,35,000। फिर डेटर से कितना कलेक्शन हुआ, कस्टमर्स पेड 36,000 टू ब्रांच। तो यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, डेटर से कितना मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ना, कलेक्शन फ्रॉम या रिसीट फ्रॉम डेटर्स गिवन इज 36,000। फिर यहाँ अगर हम क्वेश्चन और रीड करते हैं तो 2,000 डायरेक्टली हेड ऑफिस को रेमिट किया, तो इधर फिर से नीचे लिखेंगे बाई कैश बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे डायरेक्टली पेड टू हेड ऑफिस। कितना पे किया, डेटर ने पे किया 2,000, डेटर ने डायरेक्टली पे किया 2,000। फिर उसके बाद ब्रांच एक भी पैसा अपने पास नहीं रखता, बराबर है, रेमिट कर देता है, पूरा का पूरा हेड ऑफिस को पे कर देता है। ये डिस्काउंट ये ब्रांच अकाउंट में तो नहीं आएगा, अगर डेटर अकाउंट बनाते तो वहां आ जाता, अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच। और डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट में आते, हम पीएनएल अकाउंट भी नहीं प्रिपेयर कर रहे, वी आर प्रिपेयरिंग ओनली ब्रांच अकाउंट, सो इट विल कम नॉट कम एनीवेयर इन द ब्रांच अकाउंट, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट भी करके रखा है। नाउ अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस वाज 8,000, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए पैसा दिया है, कैश बैंक अकाउंट इसके लिए है, ये एक्सपेंसेस के लिए है, 8,000 दिया है। हम एक एक करके भी दिखा सकते हैं, या हम सब पूरा टोटल एक साथ ब्रैकेट में लिख लिया ना, इट इज फॉर एक्सपेंसेस, या फिर एक एक करके लिखना है तो एक एक करके भी लिख सकते हैं, या तो टोटल करके भी लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू। एक एक करके लिखना है, शो करके लिखना है कि 8,000 किस चीज के लिए है, इसे एक एक करके भी लिख सकते हैं, या तो टोटल भी लिख सकते हैं। टोटल लिखना है 8,000 तो टोटल लिखो, ऐसा नहीं लिखना एक एक करके लिखना है तो एक एक करके लिखो। हाउ एक एक करके कैसे लिखेंगे, रेंट का, सैलरी का, पेटी कैश का, इंश्योरेंस का, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेंट का, सैलरीज का, petty cash, petty expenses and insurance premium. So ये एक एक करके इसका अमाउंट लिखो, हाउ मच इट इज, 2,400, 2,400, 3,600, 1,200 एंड 800 सबको ऐड किया तो वैसे ही 8,000 हो जाता है। सो इसके बाद व्हाट इज गिवन, इसके बाद गुड्स लॉस हुआ फायर में, एंड क्लेम कितना मिला हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस को जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम मिला 1,200 का। इसके बाद हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस, हमारे पास क्या क्या क्लोजिंग बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर है 8,000, तो स्टॉक भी है 8,000, डेटर भी है 8,000, सो आई विल राइट हियर 8,000, 8,000। फिर क्या है, पेटी कैश है, कैश ऑन हैंड है 900, सो यहाँ पे मैं लिखूंगी कैश इस 900। फिर एक और चीज यहाँ पे लिखना है, फर्नीचर में देयर इज अ डेप्रीसिएशन ऑफ 10%, फर्नीचर पे 10% का डेप्रीसिएशन है, 10% का डेप्रीसिएशन है, तो फर्नीचर
3000 का है उस पर -10% करना है। सो 3000 -10% डेप्रीसिएशन माइनस करके हमें मिल जाएगा 2700। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। नाउ इसके बाद व्हाट इज देयर, इसके बाद देयर इज 250 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ये लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्या है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट कितना है 250, अमाउंट इज 250, सो आई विल राइट 250। इसके बाद हमारा पूरा सम, ये लास्ट चीज था, पूरा सम हो गया या कुछ बाकी है, सी हियर व्हाट इज देयर, कुछ बाकी है, समथिंग इज पेंडिंग। तो यहाँ पे एनीथिंग एल्स इज गिवन, नथिंग इज गिवन। सो हियर एक और चीज हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज दे हैव गिवन हियर दैट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एनुअल प्रीमियम फॉर द ईयर, एनुअल प्रीमियम फॉर द ईयर इज देयर, दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का हमें दोनों जगह मेंशन करना पड़ेगा। आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन हियर, इंश्योरेंस जो है हम लोग ईयरली 31 मार्च एंडिंग का 800 पे करते हैं, 31 मार्च। और ये ईयर कभी एंड हो रहा है, ये ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में। सी ये ईयर स्टार्ट हो गया 2018 में और एंड हो गया 2018 का दिसंबर में, और हम इंश्योरेंस पे करते हैं फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च, करेक्ट। सो यहाँ पे लेट अस गो टू द वर्किंग नोट। Let us go to the working note. Insurance is ₹800 for per year। तो ये 800 जो है ये 12 मंथ के लिए है। तो हमारा ये कौन सा, ये 12 मंथ के लिए और मार्च तक पे करते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने का इट विल बी प्रीपेड। हम जब भी पे करते हैं तो मार्च टू मार्च पे करते हैं। तो 3 महीने का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रीपेड हो जाता है। हम क्या करते हैं, मार्च टू मार्च पे करते हैं। तो एवरी बार हम 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, एडवांस में पे कर रहे हैं। तो जनवरी में जब हम आए तो मार्च तक का ऑलरेडी पेड था, और नेक्स्ट ईयर भी मतलब मार्च टू मार्च 3, इस साल भी हमने मार्च तक का, अगले साल मार्च तक का पे किया है। तो क्वेश्चन मार्क, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 800 into 3 divide by 12 कितना आ रहा है, हाउ मच आर यू गेटिंग प्रीपेड अमाउंट, प्रीपेड कितना आ रहा है देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 800 into 3 डिवाइड बाई 12 हमें आता है कितना अमाउंट प्रीपेड है, प्रीपेड अमाउंट इज, प्रीपेड इंश्योरेंस इज, हमें निकालना ही था
प्रीपेड इंश्योरेंस एंड यहाँ पे वी गेट दैट इट इज अमाउंट इज इक्वल टू 200 रुपीज 200। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर आता है 200। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा, ओपनिंग में भी लिखना पड़ेगा प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 200 एंड यहाँ पे भी हमें दिखाना पड़ेगा, चलो इधर बीच में इसको लाल लिख देती हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस इज हाउ मच। हर बार हमारा ये 200, पिछले साल भी 200 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया था, जनवरी फरवरी मार्च पिछले साल ही पे कर लिया था, तो ओपनिंग में प्रीपेड था। एंड लास्ट ईयर मतलब करंट ईयर में भी हमने अगले साल जन फेब मार्च का ऑलरेडी पे कर दिया है, सो इसमें भी प्रीपेड क्लोजिंग में आएगा, अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। So with this way, this is there. Now what we will do, हमने सब almost लिख लिया, अब इसको close करो, close all of them. How much you are getting? Just 150 plus 2,000 plus 1,35,000 plus 36,000 plus 2,000 plus 1,200 plus 8,000 plus 8,000 plus 900 plus 200 plus 2,700. How much it is coming? It is coming to 1,96,150. Here also it is coming to 196,150. And just check how much balance we are getting. How much balance we are getting? How much balance we are getting? So here we will write to profit and loss account. Profit and loss account. This is our balancing figure. This is our balancing figure. ये नीचे से लिख लेते, ये बैलेंस, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी है, और यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा ये क्या है, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है, लिखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव रिटन 44,200। इट इज़ हाउ मच, 44,200। इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, इसके साथ दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।